Hello friends, a very good evening to all of you and a warm welcome on your channel for the preparation of CAT 2025. I'm Gaurav Gupta and a big welcome to all of you for all the students who are waiting for this session to start. Hello everyone. So can you please quickly confirm if I'm clearly visible and audible? Lovely, good to see all of you joining in. I can see all of you. Yes, Shubhradeep, Sia, Ankit, Suryavanshi, Varsha, Bedmitra, everyone who has joined, Ananya, Dhruv, everyone. A very good evening to all of you. Yes, Ankit, yes, absolutely. So propeller में only data interpretation. So let's talk about data interpretation first of all. हम सबको पता है data interpretation होता क्या है, and I can say that without failing CAT में हम every year every set में हम 2 set तो minimum देखते ही हैं, right? Okay, so if I'll talk about the last year, if I'll talk about the last 2 years, last 3 years, last 4 years, so data interpretation के set आपको definitely CAT में मिलेंगे, and these are some sets जो हम सबसे पहले जाके select करते हैं because of the level of understanding we have for data interpretation, level of certainty that we have that data interpretation का set तो हम solve कर ही लेंगे, tackle कर ही लेंगे, as well as we are very comfortable in data interpretation, the type of questions that they have been asking. So maximum number of times we have seen that जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे लास्ट 5-6 इयर्स की अगर मैं बात करता हूं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव टोल्ड मी दैट दे आर इजीली एबल टू फिनिश द सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट? सो like we cannot predict अब CAT 2025 में डेटा इंटरप्रिटेशन का लेवल क्या होगा, level of difficulty of the set, 1 or 2 sets that you are going to see in CAT examination, वो क्या होने वाले हैं, right? But अभी तक अगर हम last 4-5 years को study करते हैं, so it is clearly evident that किसी भी student ने अगर logical reasoning data interpretation का section crack किया है तो वो data interpretation के बिना नहीं हो सकता. Okay, so the intensity with which the level of difficulty is being asked तो वो बहुत ज़्यादा low होता है if I'll compare it with the questions with the sets of logical reasoning, right? So we can say that data interpretation के question में enter करना, हाँ, so ये ज़्यादा profitable होता है for any student rather than entering any question of logical reasoning, because जो हमारा level of certainty होता है कि जिस तरीके से हम उस set को solve कर लेंगे तो वो थोड़ा सा chances ज़्यादा होते हैं data interpretation के question में, right? So in these sessions of Propeller, I have decided to take on the questions of data interpretation in all the 3 classes that are there, right? अब हम क्या कर रहे हैं? You understand what we are actually doing as we are going near to CAT examination. Now with every session that I am taking, I have designed for all of you, I am increasing the level of difficulty, and my agenda is to make you aware of each and every type of question that has been asked in the last 5, 6, 7, 8. Like, do not count the number of years, but I will be doing this thing that I will help you in understanding each and everything that has been asked in CAT over the last 1 decade. Right? So that's why in every session I am handpicking some of the questions from the previous year papers so that your level of preparation will keep on going up the ladder, right? तो एक एक चीज करके हम यहाँ पे level of difficulty increase कर रहे हैं, and take like keeping the same agenda, keeping the same plan in my mind. आज का जो मैंने question pick किया है, this is a question on bar graphs. bar graph का question है जो CAT में एक बार पूछा जा चुका है, तो I have picked up the exact question of CAT for today's class, and we need to understand अब आपके लेवल पे प्रिपरेशन क्या करनी है when you are watching this session. So you will have to understand the agenda why CAT has given this particular type of question, right? So what they are actually checking.
सो आपको क्या क्या करना है, आपको किस किस पैरामीटर्स पे ध्यान देना है, किस किस पैरामीटर पे ध्यान नहीं देना, राइट? सो विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वे ऑफ सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर डेटा इंटरप्रिटेशन सेट दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ कैट एग्जामिनेशन, राइट? सो डेटा देख के ना ओवरवेल्म नहीं होना है। सबसे पहली बात, डेटा देख के डरना नहीं है कि यार ये डेटा तो बहुत अजीब सा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। नहीं, सबसे पहली चीज है जो है, आपको डरना नहीं है डेटा देख के, ठीक है? सो डेटा बहुत ही देखने में, अगर आप डेटा को ऑब्जर्व करोगे, सो देखने में वो डेफिनेटली थोड़ा भयानक हो सकता है, बट जब एक्चुअली में डेटा को रीड करना शुरू करोगे, पैराग्राफ में डेटा की एक्सप्लेनेशन गिवन है उसको रीड करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि डेटा बहुत सिंपल है, राइट? तो सबसे पहली बात है कि डरना नहीं है डेटा को देख के। सो 2 मिनट स्पेंड करो, 2 मिनट में अगर डेटा समझ में आ जाता है देन इट्स फाइन, यू कैन स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन टेक अ डिसीजन ऑफ लीविंग दैट पर्टिकुलर सेट, ठीक है? सो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको 2 मिनट लगेंगे डेटा समझने में, 2 मिनट के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में ये जो टाइम है ये 4 या 5 मिनट हो सकता है। सो दैट्स अगेन अ रीजन ऑफ preferring a question of data interpretation over a question of logical reasoning, right? So now I'll be teaching you some of the skills using which you will be able to maximize your number of attempts, hence will be able to maximize your score in LRDI section, right? So जब भी मैंने LRDI के section में enter किया है, so I have always gone towards my strong point, राइट? सो स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, हम क्वांट में भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ जाते हैं, राइट? सो लेट्स से अगर मेरा लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, सो आई विल लुक फॉर द क्वेश्चन ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। बट डेटा इंटरप्रिटेशन में ना ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं होता। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास 5-6 टॉपिक्स हैं, हम अपने फेवरेट्स ढूंढते हैं, बट डेटा इंटरप्रिटेशन में व्हाट विल यू से, आपका फेवरेट बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, स्पाइडर चार्ट है? नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से इन जनरल डेटा इंटरप्रिटेशन का ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन डुएबल होता है। सो दैट्स व्हाई बिफोर लुकिंग फॉर माय फेवरेट्स इन लॉजिकल रीजनिंग, आई जनरली लुक फॉर अ सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, अ सेट और 2 सेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड मजे की बात आजकल तो ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं होती, राइट? ठीक है? सो ये चीज अगर आप लोग समझते हो देन इट विल बी like a very good opportunity for you to score wonderful in LRDI section. अब कुछ सजेशंस आ रहे हैं, सर बेस्ट ऑफ LRDI सेट्स की सीरीज स्टार्ट करो, मजा आएगा प्लीज। अंकित देखो, इस सीरीज का नाम MBA प्रोपेलर है, बट एक्चुअली में आई एम हैंड पिकिंग द डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स और लॉजिकल रीजनिंग सेट्स, ठीक है? सो आई विल स्कैन ईच एंड एवरी पेपर, राइट? सो आई विल डू दिस पर्टिकुलर जॉब फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? आपको स्कैनिंग ना करनी पड़े, आपको अच्छे सेट्स ना ढूंढने पड़े, तो वो वाली मेहनत मैं कर रहा हूं। एंड दीज आर द बेस्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन सेट। एंड देखो, बेस्ट का मतलब डिफिकल्ट सेट्स नहीं होता, बेस्ट का मतलब वो वाले सेट्स होता है जिनको हम एक्चुअल में कैट में जाके पिक करने वाले हैं। तो अगर मैं बहुत डिफिकल्ट सेट्स उठा के आपको सॉल्व करवाना शुरू कर दूं, एंड ऑन द सेम हैंड मुझे पता है कि यार अगर ऐसा कोई सेट आ जाता है कैट में तो आप लोग डेफिनेटली उस कैट के सेट को छोड़ने वाले हो। सो व्हाट इज द पॉइंट इन वेस्टिंग आवर टाइम? सो विल बी यूटिलाइजिंग आवर टाइम, विल बी स्पेंडिंग आवर टाइम in looking at those sets which are actually doable, but काफी सारे स्टूडेंट्स ने शायद उनको डेटा को देखते के साथ ही छोड़ दिया बिकॉज डेटा को रीड नहीं कर पाए वो, right? So we'll be looking at those particular type of things. Yes, so one of the students mentioned कि सिया बोल रही है हम skip ही करेंगे, ठीक है? So do not worry at all, I will be taking care of you very well, ठीक है? कैट तक मैं इतने सारे सेट आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के करवा दूंगा such that आपको ना कैट का जो पेपर है वो एकदम ऐसा खेल लगने लग शुरू हो जाएगा कि आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है कैट से पहले। यू हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी सेट दैट हैज अपीयर्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ कैट एग्जामिनेशन, राइट? सो लीव दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन मी, ओके? चलिए, ऑन दिस नोट लेट्स लुक एट टुडेज सेट। हाँ यार एंजल, हम स्टार्ट कर रहे हैं
अरे यार बकवास मत करो, ठीक है यार, मैं बकवास नहीं करूंगा, बिल्कुल बकवास नहीं करूंगा अगर आपको ये बकवास लग रही है, ठीक है। सो आई विल क्विकली स्टार्ट दिस सेट, ऑलराइट। चलिए, सो लेट्स बिगिन डेटा इंटरप्रिटेशन का ये सेट। सो द एंटायर डेटा इज ऑन योर स्क्रीन। आलोक, ये क्लास, मेरा जो क्लास है ये वीक में एक बार होता है, एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स लाइक क्वांट एंड वर्बल आरसी, ये वाली क्लासेस भी होती हैं। सो मंडे टू फ्राइडे, यस यू कैन फाइंड अस ऑन डेली बेसिस। मंडे से फ्राइडे 10 o'clock का अभी फिलहाल इस सीरीज का टाइम है, एंड वी कीप ऑन चेंजिंग दिस सीरीज, ओके। Now all of you give it a read. यहाँ पे जो भी डेटा है आपके सामने, इसको रीड करो, try to understand this, and what a diagram, right. नो प्रॉब्लम एंजल सिंगला यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बी सॉरी फॉर दैट। बट एक छोटा सा ना डिसेंसी एक्सपेक्ट की जा सकती है, देखो आप लोगों से, आप लोग मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ठीक है यार, ये व्हाट्सएप पे कॉमन पोर्टल पे जो पब्लिक पोर्टल्स है उन पे थोड़ा सा लाइक, नॉट नॉट आई एम नॉट आस्किंग अ रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ, नहीं, बट आपको ही ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। ओके चंद्रा, आप बोल रहे हो मुझे इंग्लिश बोल नहीं पाती हूँ, ओके। सो चंद्रा, आप इंग्लिश बोल या समझ, लाइक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, बट माय डियर फ्रेंड एक चीज समझो, कैट में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो सारे ऑब्वियसली इंग्लिश में होंगे, एंड बिलीव मी, जो लैंग्वेज कैट में यूज की जाती है वो बहुत सिंपल नहीं होती। तो आपको सबसे पहला स्टेप यही लेना पड़ेगा कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, ये सब चीजों पे आपको खास ही फोकस करना पड़ेगा, राइट। ओके, perfect. So please write done in the chat box. Go ahead. Please write done in the chat box once you have read this data, understood this data. I'll spend one more minute on this. I'll talk about this data and then we'll take you to the questions one by one. Okay? Okay, so Dhruv says, done sir, मैंने देखा है कि ये शिप बेस है, उसमें ये बार ग्राफ है, बट इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस दिया, ओके फाइन। सो ऑल ऑफ यू हैव रिटन डन। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा क्या है, ओके। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज काइंड ऑफ अ क्यूमुलेटिव बार ग्राफ। अगर मैं इसको घुमा देता हूं, 90 डिग्री से रोटेट कर देता हूं, सो टॉवर एक एक करके, एक के ऊपर एक टॉवर्स बन जाएंगे। सो क्यूमुलेटिव बार ग्राफ की तरह कुछ दिख रहा है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ कैटेगरीज हियर एंड सम डेट्स आर मेंशन्ड हियर, ओके। नाउ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, 3 क्लासेस आर डिफाइंड, 3 तरीके के ग्राफ दिए हुए, 3 तरीके के बार दिए हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास, राइट। अब गाइस प्रॉब्लम पता है क्या होती है, डेटा इतना सारा है, पैराग्राफ की फॉर्म में है, बार की फॉर्म में है, राइट। तो हमें ना, एक जैसे स्टूडेंट ने लिखा कि सर इस डेटा को देखते ही नींद आ गई कि भाई इतना बड़ा डेटा है, इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, अब इसको रीड कौन करेगा। बट बिलीव मी, यहां पे जो भी लैंग्वेज है ना बहुत सिंपल है, एंड उन्होंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो कैट अथॉरिटीज भी समझती हैं कि जो भी वो डेटा दे रहे हैं ना, उनको क्लियरली कुछ स्टेट करना पड़ेगा सो दैट स्टूडेंट उस डेटा को अंडरस्टैंड कर पाए। सो वो भी चाहते हैं कि आप इस डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर लो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, सो दैट यू विल बी एबल टू एटलीस्ट एंटर द क्वेश्चंस,
ओके एंड ये ऐसा नहीं है कि बहुत अनकॉमन चीज है, नहीं, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जहां पे वो पूरे ग्राफ को एक एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको यहां पे एक एग्जाम्पल भी दिख रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस कैट के एग्जाम में इस पर्टिकुलर सेट में उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, ये ऑलमोस्ट हर बार ऐसा होता है। सो लेट्स क्विकली रीड दिस डेटा। सो डेटा बोल रहा है द डिफरेंट बार्स इन द डायग्राम, जो डिफरेंट बार्स है इन द डायग्राम अबव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट ऑर्डर्स इन वेरियस कैटेगरीज। सो डिफरेंट ऑर्डर्स इन वेरियस कैटेगरीज, सो ये सारी कैटेगरीज हैं आपके पास, राइट? सो कैटेगरीज आर आर्ट, बाइंडर्स एंड सो ऑन दैट वर बुक्ड इन द फर्स्ट 2 weeks of September of a store for one client। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के जो बुक हुए हैं। द कलर एंड द पैटर्न ऑफ द बार, द कलर एंड द पैटर्न, अब यहां पे आप देखोगे कलर और पैटर्न डिफरेंट है। सो द कलर ऑफ एंड पैटर्न ऑफ द बार डिनोट्स द शिप मोड, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास, एज यू कैन सी हियर। तो ये जो रेड कलर की डायगोनल लाइंस है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज फर्स्ट क्लास, ब्लैक कलर का जो है वो सेकेंड क्लास है एंड ग्रीन कलर का स्टैंडर्ड क्लास है। डन। The left end point of the bar indicates, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, the left end point of a bar indicates the booking day of the order। जिस दिन ऑर्डर बुक हुआ है वो कौन से, किससे पता चलेगा? सो अगर आप ये वाला पोर्शन कंसिडर करो, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ब्लैक वाला बार, राइट, इसकी डेट कितनी है? अगर मैं यहां पे जाता हूं तो इट इज 6th of September, 6 सितंबर डेट है। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो है बुकिंग डेट, while the right end indicates the dispatch date। सो एक बुकिंग डेट है और एक डिस्पैच डेट है। तो बहुत सिंपल से डेटा को कॉम्प्लिकेटेड वे में यहां पे बताया हुआ है। तो अगर मैं ये वाली ब्लैक लाइन देखता हूं, आर्ट, द कैटेगरी इज आर्ट, एंड ये जो ब्लैक वाला बार है, ब्लैक वाला बार मींस सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास को देखता हूं तो इसकी बुकिंग डेट है 6th of September, 6th of September को ये ऑर्डर बुक हुआ है एंड इसकी डिस्पैच डेट कब की है? 13th of September। तो 6 सितंबर को बुक हुआ, 13 सितंबर को डिस्पैच हो गया, राइट? ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्पैच डे एंड द बुकिंग डे, 6th of September एंड 13th of September, इनका डिफरेंस कितना है? 6 and 13 का डिफरेंस 7, राइट? Sorry, 6 and 13, yes, the difference is 7। So the difference between the dispatch day and the booking day is called the processing time of the order, right? तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट वाली जो पोर्शन है एक किसी भी बार की, वो बुकिंग डेट है, राइट वाला जो है वो डिस्पैच डेट है, और इनका डिफरेंस जो भी होगा वो प्रोसेसिंग टाइम है। कितना सिंपल सा डेटा है, ठीक है। अब सिमिलरली हर एक ऑर्डर के लिए हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। डन। नाउ फॉर द सेम कैटेगरी एन ऑर्डर इज कंसिडर्ड फॉर बुकिंग ओनली आफ्टर द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ द सेम कैटेगरी इज डिस्पैच्ड। सो किसी भी कैटेगरी के लिए एक ऑर्डर बुक तभी हो सकता है जब प्रीवियस वाला ऑर्डर है डिस्पैच हो चुका है। मतलब कुछ भी चीजें ओवरलैप नहीं है, ठीक है। डिस्पैच होने से पहले बुक कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पिछला वाला ऑर्डर डिस्पैच होगा तभी उसके बाद वाला ऑर्डर बुक हो सकता है। डन। क्लियर है? चलो। नो 2 consecutive orders of the same category had identical shipping mode during this period। No 2 consecutive orders of same category, किसी भी सेम कैटेगरी में कोई भी 2 consecutive orders सेम शिपिंग मोड के नहीं है। दैट मीन्स ये जो ब्लैक वाला अगर पूरा का पूरा बार कंसिडर करता हूं तो ये एक सिंगल ऑर्डर है। ऐसे ग्रीन वाला अगर मैं बार कंसिडर करता हूं तो ये एक सिंगल ऑर्डर है। यहां पे 2 अलग अलग ऑर्डर्स नहीं है। तो ब्लैक वाला अलग ऑर्डर है, ग्रीन वाला अलग ऑर्डर है, एंड 2 ग्रीन वाले एक साथ नहीं आ सकते। तो इन्होंने क्यों बताया ये? ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए कि इसकी बुकिंग डेट यहां पे है, डिस्पैच डेट यहां पे है, फिर यहां पे एक और ब्लैक वाला बुक हो गया और यहां पे डिस्पैच हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स सेम शिपिंग मोड के नहीं होंगे। अब जो भी मैंने आपको एग्जांपल यहां समझाया है वो इस एग्जांपल के साथ यहां पे भी समझाया हुआ है, राइट? ओके, फाइन। सो
द डेटा लुक्स इजी नाउ, आई बिलीव सबको इजी लग रहा है डेटा. गुड इवनिंग विवेक. ऑलराइट, लवली. चलिए, सो फटाफट से क्वेश्चंस पे चलते हैं एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ठीक है, सो क्वेश्चंस पे चलते हैं. ग्राफ यहां पे दोबारा से मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, बट ग्राफ हर एक क्वेश्चन के साथ होगा, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. How many days between 1st of September and 14th of September, both inclusive, had no booking from this client considering all the above categories? So considering all these categories, कितने days होंगे 1st September से 14th September तक both inclusive when no booking was done from this client? Now you all can post your answers in the chat box. जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो क्विकली. All right, Aditya says 10 and Ananya says 6. Vivek 11. All right. विवेक का आंसर गायब हो गया. ध्रुव says 6, पलक says 2, श्रीतम says 9. अच्छा, ऑल ऑफ यू एक और काम करो. whatever answer you are writing, let's say पलक आपने 2 लिखा है आंसर, तो कौन कौन सी डेट्स हैं वो भी मेंशन कर दो. so let's say you are saying it has happened twice, so let's say according to you it is on 2nd September and 5th September. Okay, so just mention the dates on which this has happened when no booking was done. So Ayushi, Pintu, everyone, I'm giving you another 1 minute. So whatever your answer is, उसके आगे कौन कौन सी डेट पे ऐसा हुआ है वो भी मेंशन कर दो. ओके, थोड़ा सा आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा. आपके पास आंसर तो है ही, राइट? सो यू ऑलरेडी हैव गॉट द आंसर. आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया है. थोड़ा सा इलैबोरेटेड वे में वो लिख दो. वंडरफुल. स्मिता एंड व्लॉग, अनन्या, ऑल ऑफ यू हैव डन दैट. लवली, गुड. चलो, सो डिस्कशन करते हैं. अब पूछा क्या गया है यहां पे, on how many days between 1st of September and 14th of September both inclusive. ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो 1st September and 14th September को भी इंक्लूड करना है, राइट? No booking from this client was there. So कोई भी ऑर्डर बुक नहीं हुआ in all these categories put together, right? Okay, so that means हमें वो वाली dates select करनी है जहां पे कोई भी बुकिंग नहीं हुई है. Let's start from 1st of September. Now booking कैसे पता चलेगी? The left hand side of the bar. Okay, so 1st of September मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं. इधर बुकिंग हुई है, यहां पे भी बुकिंग हुई है, इधर भी बुकिंग हुई है, इधर भी बुकिंग हुई है. तो 1st of September is not considered. 1st of September को ऑर्डर्स बुक हुए हैं, राइट? 2nd September I can see that यहां पे एक ऑर्डर बुक हुआ है. ओके, वेट, कलर चेंज कर लेता हूं मैं. दिस वन. सो 1st of September I can see that एसेसरीज में एक ऑर्डर बुक हुआ है. एक ही ऑर्डर काफी है. मुझे चाहिए ऐसी डेट्स जहां पे कोई भी ऑर्डर बुक नहीं हुआ है. तो 1st of September is not considered, 2nd September is not considered, 3rd of September is not considered. They have at least one booking on these dates. Now 4th of September, if I'll go, I can see that यहाँ पे 4th of September पे बुकिंग हुई है, इधर भी बुकिंग हुई है, राइट? 5th of September यहाँ पे नया ऑर्डर बुक हुआ है, ब्लैक कलर का ग्राफ. तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th नहीं आएंगे. ओके, अब अपना आंसर मैच करते रहना. सो 5th of September I have a booking here. 6th of September चेक करते हैं. 6th of September कोई नया ऑर्डर बुक हुआ है? यस, नए 2 ऑर्डर्स तो बुक हुए हैं. 6th of September के लिए भी मैंने यहां पे मार्क कर दिया है. ओके, एज यू कैन सी हियर 6th of September.
7 सितंबर यहां पे एक नया ऑर्डर बुक हुआ है, ओके राइट। सो 7 सितंबर यहां पे एक नया ऑर्डर बुक हुआ है, करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं 8 सितंबर। Now 8th of September, can I see any new order booking? No. So I cannot see any new booking. So 8th of September will be the first date when no order was booked. 9th of September, 9th of September पे कोई भी new booking नहीं है. So 8th के बाद I'll consider 9th. 9th के बाद 10th of September. Again I cannot see any new booking. 10th of September will also be considered. 11th of September, yes, it will be considered. Then 12th of September, कोई new booking हुआ है? नहीं. Order dispatch हुए हैं, but booking नहीं हुआ है. 12th of September, right? 13th of September, I can see here, यहाँ पे एक booking हुआ है, right? 13th of September booking हुई है, and 14th of September कोई booking नहीं हुई. I have to go only till 14th of September. Right? So 8, 9, 10, 11, 12 and 14. These are the 6 dates on which the booking was not done. Booking कैसे होगी? ये कैसे पता चलेगा? The starting यहाँ पे ये जो left side of any bar, this gives me the booking and the right end of any bar gives me the dispatch dates. All right? So we have 6 days in which this has happened. No booking was done from the client. All right, ठीक है। Oh, पलक यू आर सेइंग डिस्पैच एंड डिलीवर दोनों काउंट कर लिया। So पलक यही चीज हमें ध्यान देनी है। So considering all the above categories, no booking was done. Okay, so आपने बुकिंग के साथ साथ डिस्पैच भी देख लिया, that's why पलक आपका आंसर सिर्फ 2 आ रहा था, right? Okay, understood। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो अपना ना दिमाग ओपन करके रखना है एंड अभी ना नोट डाउन करते रहो कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या क्या सिली एरर्स कर रहे हैं, सो दैट ऑन द नेक्स्ट डे कल से आप ये वाले एरर्स रिपीट ना करो, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल द ऑर्डर्स इन द कैटेगरीज व्हिच हैड ओनली वन टाइप ऑफ शिप मोड। तो आपको कैटेगरीज सबसे पहले फाइंड आउट करनी है इन सब कैटेगरीज में से जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का शिपिंग मोड है, राइट, एंड देन उसका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करना है। प्रोसेसिंग टाइम क्या था? द डिफरेंस बिटवीन द बुकिंग डेट एंड द डिस्पैच डेट। सो कैन यू ऑल प्लीज राइट कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें सिर्फ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ शिप मोड। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इन विच वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ शिप मोड। ऑलराइट, स्टूडेंट्स ने लिख भी दिया, नाइस रति, वेरी गुड, राहुल वंडरफुल। चलो अब आंसर निकाल लो जल्दी से, क्विकली गिव मी द आंसर। ऑलराइट, great. So let's talk about the average processing time of, first of all, finding those categories in which all the categories like which had only one type of shipping mode. So one type of shipping mode, just to give an example, अगर मैं आर्ट को देखता हूं कितने टाइप शिपिंग मोड है यहाँ पे। So आर्ट is using all 3 of them, स्टैंडर्ड क्लास भी यूज कर रहा है, सेकंड क्लास भी यूज कर रहा है एंड फर्स्ट क्लास भी यूज कर रहा है। सो आर्ट हैज ऑल द 3 कैटेगरीज। सिमिलरली बाइंडर्स के पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है और स्टैंडर्ड क्लास भी है। सो बाइंडर्स के पास भी ऑल 3 कैटेगरीज हैं। पेपर्स की अगर बात करता हूं मैं, सो पेपर्स के पास ब्लैक कलर है, दैट मींस सेकंड क्लास, and red color hai, that means first class. So paper is using
टू डिफरेंट टाइप ऑफ शिपिंग मोड्स, राइट? सो बाइंडर्स के पास सारे शिपिंग मोड्स हैं, आर्ट के पास सारे शिपिंग मोड्स हैं, बट पेपर के पास सिर्फ दो टाइप के शिपिंग मोड्स हैं, ब्लैक वाला है और रेड वाला है। दैट मींस फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। सिमिलरली अगर फोन्स की बात करें तो फोन्स में ग्रीन कलर वाला है और रेड कलर वाला है। दैट मींस फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है। तो यहां पे सिर्फ दो शिपिंग मोड्स है फॉर फोन्स। ओके, अब मुझे वो वाली कैटेगरीज देखनी है जहां पे देयर इज ओनली वन शिपिंग मोड। सो यू कैन सी एट द बॉटम एसेसरीज एंड एनवेलप्स। ऑलराइट, सो एसेसरीज एंड एनवेलप्स, ये दो कैटेगरीज हैं जिनमें सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ शिपिंग मोड इज यूज्ड। नाउ फॉर एसेसरीज, व्हाट इज द प्रोसेसिंग टाइम? एसेसरीज में बुकिंग डेट इज 1st of September and dispatch date is 19th of September, right? So 1st of September and 19th of September, इनका डिफरेंस कितना होगा? 19 minus 1, that is 18. So processing time for accessories is 18. Done. Similarly for envelopes, what is the processing time? Booking date is 3rd of September and dispatch date is 7th of September. So 7 minus 3, that is 4. So processing time for envelopes is 4. अब इन दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। So 18 plus 4 divided by 2, that will be 11. So 11 will be the correct answer for this question. Alright, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगेन इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा मतलब समझ में आना चाहिए, एंड आई कैन सी दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव गिवन 11 एज द करेक्ट आंसर। लवली, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. The sequence of categories, art, binders, papers and phones in decreasing order of average processing time of their orders in this period is. So आपको 4 कैटेगरीज है, उनका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम निकालना है उनके ऑर्डर्स का, एंड उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. So which of these following options, these 4 categories are in the decreasing order of their average processing time of their orders? All right. So Ananya says B, that is phones, binders, arts and paper, binders, arts and phone. Okay. अनन्या प्लीज चेक, ऑप्शन बी है आंसर, या फिर आपने ना ऑप्शन बी आंसर लिख के जो आपने कैटेगरीज लिखी हैं वो बी ऑप्शन से मैच नहीं हो रही हैं आपकी. ऑलराइट, सो बी, डी एंड ए, सिर्फ सी ऑप्शन बचा है. कोई ना कोई तो बोल ही देगा, मुझे पक्का पता है. So among the answers that are given by the students, option A, option B and option D, all 3 options are covered, already covered. Okay, so Ananya, now you are saying option C. Rati, you are saying option D. Ruma, D. Vivek, D. Manoj says D. काफी सारे लोग D बोल रहे हैं. Option C. Rishabh is saying option C. I'm Phoenix, दोनों ही C और D. यार ये क्या बात हुई, C और D? एक आंसर दो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए मुझे. देवांशी सेज C. काफी सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन C और ऑप्शन D पे टिके हुए हैं. लेट्स सी कौन सा आंसर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन कैटेगरीज को पकड़ लेते हैं, आर्ट, बाइंडर, पेपर, फोन. अच्छा, टॉप 4 कैटेगरीज, ये 4 कैटेगरीज ऊपर की है. ठीक है, अब आंसर जल्दी भी निकालना है और करेक्ट भी निकालना है. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोसेसिंग टाइम. प्रोसेसिंग टाइम फॉर ऑल द ऑर्डर्स फॉर आर्ट. ठीक है, अब आर्ट के लिए पहला ऑर्डर क्या है, यहां पे है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 2.
राइट। सो 8 के लिए मैं ऐड करता हूं 2, फर्स्ट ऑर्डर का प्रोसेसिंग टाइम था 2 days, देन 1 day, देन 2 days प्लस यहां से लेके यहां तक, सो 1 2 3 4 5 6 7 days, एंड देन फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 days, राइट। नाउ दे हैव 5 ऑर्डर्स, 8 के पास 5 ऑर्डर्स हैं टोटल, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे एंड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा। ओके, नाउ एक चीज खुद से पूछो, इज इट रिक्वायर्ड टू ऐड दीज नंबर्स सेपरेटली? क्या इन नंबर्स को अलग अलग ऐड करने की जरूरत है? जस्ट लुक एट द फर्स्ट डेट एंड द लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या थी? 21st of September। फर्स्ट डेट क्या थी? 1st of September। पहला ऑर्डर 1st of September को लिया गया और लास्ट ऑर्डर 21st of September को डिस्पैच किया गया। तो कैन आई से दैट द टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल द ऑर्डर्स पुट टुगेदर विल बी 21 minus 1, दैट इज 20? यस और नो? तो अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, इनको ऐड कर लो, ये भी 20 ही आ रहा है। मैं दोबारा समझा देता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्डर सेपरेटली कैलकुलेट किया। सो 2 days, 1 day, then 2 days, 7 days एंड देन 8 days। इनको ऐड किया तो ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 5। वाई डिवाइडेड बाय 5? बिकॉज दीज वर 5 ऑर्डर्स। सो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ दीज ऑर्डर्स निकालना है, तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बट माई क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू कैलकुलेट दीज प्रोसेसिंग टाइम सेपरेटली फॉर ऑल दी ऑर्डर्स? नो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बिकॉज फर्स्ट डे ऑफ द बुकिंग एंड लास्ट डेट ऑफ द डिस्पैच, इनका जो डिफरेंस होगा that will be the total sum of the processing time of all these orders for the category of arts। ठीक है, तो टाइम सेव करना है। डन। तो आर्ट के लिए कितना आ गया? 4 आ गया। अब दूसरी कैटेगरी है बाइंडर्स। सो बाइंडर्स के लिए कितना आएगा? फर्स्ट इज 1st of September एंड लास्ट डिस्पैच डेट क्या है? 16 September। फर्स्ट से लेके 16 तक टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना हो जाएगा? 15 days डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 ऑर्डर्स। 15 upon 4, 3.75, राइट। तो आर्ट का ज्यादा है, बाइंडर्स का कम है। सो आर्ट पहले होना चाहिए, बाइंडर्स बाद में होना चाहिए। ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो ही गया। ठीक है, आर्ट का ज्यादा है, बाइंडर्स का कम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी आंसर दिया है, वो तो गलत हो गया। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, सिर्फ इन 2 वैल्यूज की वजह से। आगे चलते हैं, पेपर की बात करते हैं। सो पेपर के लिए 2nd of September को पहली बुकिंग डेट है एंड लास्ट डिस्पैच डेट कहां है? 12 of September। तो 2nd September से 12 September डिफरेंस कितना है? 10। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं पेपर के लिए? 1 2 3। सो 10 डिवाइडेड बाय 3, अप्रोक्सीमेटली 3.33। अब ये तो बाइंडर से भी कम है, तो पेपर और भी कम होना चाहिए। तो आर्ट, बाइंडर, पेपर, तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो फोन्स के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फोन्स के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेट इज 2nd September एंड लास्ट डिस्पैच डेट इज 17। तो 2 से लेके 17, 15 days इज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। एंड फोन्स में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 3 ऑर्डर्स हैं। तो 15 upon 3 इज 5। फोन्स इज हाईएस्ट। हाईएस्ट है तो सबसे पहले फोन्स चला जाएगा, ऑप्शन ए हट जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोन्स टॉप पे है, देन आर्ट, देन बाइंडर्स एंड देन पेपर्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, ठीक है। सो काफी लोगों ने ऑप्शन सी दिया है, बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, let's quickly move on to the last question of this set। last question again बहुत ही simple question है। approximately what percentage of orders had a processing time of 1 day
during the period 1st of September to 22nd September, both dates inclusive. ऑलराइट पलक, आपका सही था, वंडरफुल, ग्रेट. एंड विवेक, आपका भी सही था, वेरी गुड. All right, great. So guys, can you tell me what is the total number of orders here? Total कितने orders हैं? वन डे वाले हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, जो बहुत इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कैटेगरी क्विकली. आर्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5. आर्ट में कितने ऑर्डर्स हैं? 5 ऑर्डर्स हैं, राइट? Similarly, binders 1 2 3 and 4 orders in binders. Paper 1 2 3, phones 1 2 3, appliances 2, bookcases 3, as you can see here. Fasteners, there are 3 orders. Do you understand how am I calculating the orders, right? So कितने ये अलग अलग टाइप के बार्स हैं यहाँ पे, वो काउंट करने हैं. Furnishing 2 orders, labels 2 orders, tables 2, chairs 2. So 2 2 2 and 2. Accessories 1, envelopes 1, and storage 2 orders, right? So किसी ने अगर कैलकुलेट कर लिया है, vlog Ananya and Akshita says there are 35 orders. So 9 and 15, 16, 17, 20, 25, 31 and 35. Total number of orders is 35. ओके, अब इन 35 ऑर्डर्स में से कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका 1 डे प्रोसेसिंग टाइम है? मैं वहां पे सर्कल कर रहा हूं. सो पहला यहां पे दिख रहा है आर्ट्स में. बाइंडर्स में ऐसे 2 ऑर्डर्स हैं जिनका 1 डे प्रोसेसिंग टाइम है. देन फोन्स में एक ऑर्डर दिख रहा है जिसका 1 डे प्रोसेसिंग टाइम है. बुक केसेस में ऐसे 2 ऑर्डर्स दिख रहे हैं जिनके 1 डे प्रोसेसिंग टाइम है, राइट? अभी तक 6 हो चुके हैं. Then I can see chairs में एक है and there is no further order. So 1 2 3 4 5 6 7 orders out of 35 orders have 1 day processing time. Now 7 as a percentage of 35, simple सी चीज है, आंसर आ गया 20%, right? So 20% is the correct answer. Okay, all right. So friends, that's all about this set. Now काफी easy set था, थैंक यू हो चुका है अब इस सेट का तो यार. एंड ये वाला जो सेट था मैंने कहां से पिक किया है? कैट 2021. बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, कैट 2021 स्लॉट नंबर 2. एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है एंड आई वुड से दैट दिस वाज डेफिनेटली अ डूएबल सेट, राइट? सो फ्रेंड्स, गॉट ऑल करेक्ट. यस सर, रियली इजी. यस वर्षा, बट वर्षा आई डोंट नो इफ यू अग्री विद मी और नॉट. जिस टाइप से डेटा दिया हुआ था ना, तो हमें फर्स्ट लुक जो होता है ना, उसको लाइक सेट को देखते के साथ ही हमें डर लगेगा एंड वी माइट नॉट एंटर दिस काइंड ऑफ सेट. बट बिलीव मी, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो सेट्स कैट में आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूएबल सेट्स. एंड आई नॉट कॉल देम डूएबल, आई वुड से दैट they are the easiest of all the sets that are there in CAT examination, right? So friends, data interpretation जो हमें लगता है ना कि difficult है, बहुत ज्यादा calculations होती है, so this was the actual data interpretation set that was asked in CAT examination. ठीक है? So यहाँ पे ज्यादा calculation ज्यादा क्या, बिल्कुल भी calculations नहीं थी.
लास्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज में पूछा गया, 7 as a percentage of 35, right? So CAT authorities nowadays are checking us less on calculations and more of observation कि हमारी observation skills कितनी है, कितनी to the point है. So बहुत ज्यादा difficult set नहीं आते, ठीक है? So it looked difficult but it was actually an easy set, right? So friends, like this I'll be bringing many more sets. अब ऐसे भी सेट होंगे जो देखने में इजी लगेंगे बट एक्चुअल में मुश्किल होंगे, राइट? तो मैं सिर्फ इजी सेट्स नहीं लेके आऊंगा आपके पास, मैं ऐसे सेट लेके आऊंगा जो डुएबल सेट होंगे, राइट? They might be of a little higher level of difficulty, but you cannot afford to leave those kind of questions in CAT examination, right? So friends, I'll sign off for the day and I'll see you in the next week. Have a nice time. Good night.